Hello everyone. The topic that we are going to start today is about models of circular flow of income. This is the topic that we are going to start today. Now, before starting this topic, let's see the topic that we have done in our previous session. Okay, in our previous session, these are the topics that we have discussed in detail. The first is basic economic activities. So, three basic economic activities हमने in our previous session we have seen the three basic economic activities. The three basic economic activities are number one, production. Okay, so three basic economic activities. Number one, production. Then consumption. And three, capital formation, जिसको हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं. ओके, नाउ प्रोडक्शन के लिए अगर सिंपल सेंटेंस मुझे कहना है, देन आई विल से प्रोडक्शन इज व्हाट? प्रोडक्शन इज एडिंग वैल्यू टू द रॉ मटेरियल और एडिंग वैल्यू टू द इंटरमीडिएट कंजप्शन. और इफ आई वांट टू से प्रोडक्शन के बारे में, आई वुड से प्रोडक्शन मींस कन्वर्टिंग इनपुट इनटू आउटपुट. ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट कंजप्शन. कंजप्शन मतलब क्या? It is the process of using up the utility of goods and services for the direct satisfaction. अगर मैं कोई प्रोडक्ट खरीदता हूं और अगर वो प्रोडक्ट मेरे डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए है, then that will be termed as consumption. अब कंजप्शन में फर्दर अगर हम देखने जाएं तो कंजप्शन में इंडिविजुअल कंजप्शन होता है. अगर मैं अपने हाउस होल्ड के लिए या कुछ चीजें लेता हूं या मेरे डायरेक्ट कंजप्शन के लिए अगर मैं कोई चीज लेता हूं तो दैट विल बी इंडिविजुअल कंजप्शन. कलेक्टिव कंजप्शन मतलब collective, more number of people are using those services just such as road, school, hospital, ये सब collective consumption में आता है. Then the capital formation also known as investment. Investment मतलब क्या? पहले ये समझते हैं. Investment मतलब addition made to the existing stock of capital. Existing capital जितना है उसमें कितना इस साल addition हुआ है, that will be termed as capital formation और investment. Okay? अब जितना भी capital formation होता है उतना कंट्री के ग्रोथ में वो हेल्पफुल रहता है. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट टॉपिक वी हैड डिस्कस इन आवर प्रीवियस सेशन. द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैड सीन वाज अबाउट सर्कुलर, वाज अबाउट फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो. फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो, जिसमें हमने अगेन थ्री फेसेस वी हैव सीन. ओके, द फर्स्ट वन इज phase of production, the next is phase of income generation, and the third phase of expenditure. Production कैसे होता है? You know, if I am a producer, I will use the factor services. Factor services कौन कौन सी हैं? Land, labor, capital and entrepreneur. ये factor services है. Along with the other non-factor inputs, I am going to go for the production. Okay, factor input and non-factor input दोनों को use करके I will go for the production. अब जो भी production होगा, okay, the next phase here is the generation of income, because जिनसे मैंने services ली है, I have to pay them. Monetarily I have to pay them, so that is income generation. Okay, so income generation कब होगी? When I sell the goods, I get the money and give them income. So income उससे मेरी भी generate होती है, उनकी भी generate होती है. So that is the next phase, that is income generation. अब सब लोगों के पास income आ गई है, अब expenditure होगा. Okay, if the expenditure is done by the household, it is known as consumption expenditure. If the expenditure is done by the producer, it is known as investment expenditure. अब expenditure हो गया, then now there is demand of goods and services, again production will be done. So this will flow in circular mode. Okay, there is no end to this circular flow because there is no end to human activities. Okay, so this was the topic, and one more topic we have seen, and that was the difference between, this was the third topic we have seen, difference between real flow and money flow. Okay, if goods and services are flowing, okay, it will be termed as real flow, and अगर
मॉनेटरी टर्म में कुछ फ्लो होता है, दैट विल बी नोन एज मनी फ्लो. रियल फ्लो, मनी फ्लो, ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं दे आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर. both are equal, equal in the sense they are opposite to each other, but goods and services are flowing in one direction and money is flowing in other direction. तो goods and service का जो flow है that is known as real flow, and money का जो flow on the other hand होता है वो है जिसको हम money flow कहते हैं, and monetary transaction यहाँ होते हैं. Okay, so this was the topic which we have discussed in detail in our previous session. Now we are going to start our today's topic, and the today's topic is models or forms भी कहते हैं इसको of circular flow of income. So here we will understand this topic with the help of one diagram. Okay everyone, so you need to pay attention here. Diagram की जब बात आती है, diagram है इसीलिए, because diagram अगर clear है then all the things will be clear. Now one thing everyone, see actually sectors जो economy में है ना, there are 4 sectors. Okay, I am writing here, there are 4 sectors. One is producer, second is household, the third is government, and the fourth is rest of the world. लेकिन in our syllabus class 12th में जो CBSE का syllabus है, that is restricted to only the first 2 topics, producer and household. So we will talk about circular flow of income considering the 2 sector economy only. So we will consider producer and household only. So everyone pay attention. I am writing here the first sector, that is producer. Okay, and the second sector is here, that is household. Okay, these are the 2 sectors, sector 1 and sector 2. Now let's understand the topic with the help of the diagram. Okay, now सबसे पहले, okay, factor services will move from household to the producer. Factor services are moving, everyone understand, factor services are moving from household to the producer. So I am writing here the factor services. See, factor services कौन कौन सी? Land, labor, capital and entrepreneur. Okay, this is transaction 1. Okay, we are going to see here 8 transaction. One by one we will see all the transaction. So पहला transaction है, उसमें कहां से कहां तक का flow हो रहा है? From household to the producer. क्या move होता है? Factor services. कौन सी factor services? Land, labor, capital and entrepreneur. Now the second transaction. अब producer से move होगा second transaction household के पास. Second transaction क्या move होगा? Factor payments. कौन कौन से factor payments? Land को क्या मिलेगा? Rent. Labor को मिलेगा wages. Capital को मिलेगा interest and entrepreneur को मिलेगा profit. So these are the first 2 transactions. Okay, in the first transaction the things are moving from the household to the producer. What is moving? That is factor services. In the second transaction the things are moving from the producer to the household in the form of factor payments, and these are the factor payments. Okay, so these 2 transactions are done. Now let's see the third transaction. In the third transaction the things are moving from the producer to the household, and क्या move होता है? Final goods and services. Everyone see, प्रोड्यूसर से हाउसहोल्ड के पास क्या मूव होता है? दिस इज ट्रांजैक्शन नंबर 3. ओके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मूव फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द हाउसहोल्ड. अब हाउसहोल्ड के पास गुड्स एंड सर्विस खरीदने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा. ओके, सो इन द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन द थिंग्स आर मूविंग फ्रॉम द household to the producer, and this is transaction number 4. क्या हो रहा है यहाँ पे? Consumption expenditure on goods and services. Okay, so these are the 4 transaction. Okay, इन चारों transaction का see, अगर question आपको इतना
पूछा जाता है कि यू टू एक्सप्लेन द मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी. ओके, आई एम राइटिंग दिस विथ दिस पेन. सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी. तो अगर सिंपल इकोनॉमी के बारे में पूछा है देन यू टू एक्सप्लेन दिस मच ओनली, 4 ट्रांजैक्शन ही. ओके, सिंपल इकोनॉमी अगर पूछा जाता है देन यू टू एक्सप्लेन द थिंग्स विथ 4 ट्रांजैक्शन ओनली. ओके, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आता है यू टू एक्सप्लेन द 2 सेक्टर मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी विथ फाइनेंशियल सिस्टम. ओके, विथ फाइनेंशियल सिस्टम आता है देन यू टू एक्सप्लेन द ऑल द 8 ट्रांजैक्शंस. ओके, लेकिन सिर्फ अगर क्वेश्चन सिंपल इकोनॉमी के बारे में है देन सिंपल इकोनॉमी मींस व्हाट, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट. देयर इज फाइनेंशियल मार्केट हियर. ओके, वो फाइनेंशियल मार्केट यहां नहीं है बिकॉज द क्वेश्चन इज व्हाट, सिंपल इकोनॉमी. लेकिन अगर क्वेश्चन आता है विथ फाइनेंशियल मार्केट, ओके, देन सिंपल इकोनॉमी में 4 ट्रांजैक्शन जो थे वो लिखने हैं एंड 4 और ट्रांजैक्शन लिखने हैं विथ फाइनेंशियल market. Then in all you have to write the 8 transactions. Okay, let's see the other 4 transactions also. Now see, ये सिंपल इकोनॉमी कभी पॉसिबल नहीं है, फाइनेंशियल मार्केट तो चाहिए बिकॉज मॉडर्न इकोनॉमी जो है अभी हम देख रहे हैं वो विदाउट फाइनेंशियल मार्केट पॉसिबल ही नहीं है. फाइनेंशियल मार्केट तो चाहिए ही बिकॉज प्रोड्यूसर्स एंड हाउस होल्ड्स दोनों हैं वो पैसा सेव करते हैं. ओके, एंड बोरो भी करते हैं. Okay, me as a producer, I also save the money and I also borrow the money if I am in need. लेकिन यही चीज अगर आप सेम हाउसहोल्ड के व्यू पॉइंट से देखो तो भी वही होता है, वो भी पैसा सेव करते हैं and they also borrow the money. Okay, so to think the things without the financial market is actually not possible. Okay, तो बाकी के जो 4 ट्रांजैक्शन हैं they are very easy. Okay, okay, now let's see the things with financial system क्या होता है. Okay, so here in the middle there is financial market और money market भी आप कह सकते हो. Okay, अब हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर दोनों पैसा सेव भी करते हैं एंड हाउसहोल्ड एंड प्रोड्यूसर दोनों पैसा बोरो भी करते हैं. ओके, हाउसहोल्ड से स्टार्ट करते हैं. ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 5. हाउसहोल्ड जो पैसा सेव करते हैं वो कहां रखते हैं? पैसा सेव करके फाइनेंशियल मार्केट में वो पैसा सेव करते हैं. So this is known as savings. This is transaction number 5. And अब अगर हाउसहोल्ड को पैसों की जरूरत है, they borrow the money from the financial market. Financial market से पैसा बोरो भी करते हैं वो लोग. Borrowings. This is transaction number 6. The same thing will apply here. Producer के पास अगर पैसा है वो सेव करते हैं, that is savings and that is transaction number 5 and 6 are done here. This is transaction number 7. And अब अगर उनको प्रोड्यूसर को पैसों की जरूरत है तो they borrow the money from the financial market. This is borrowings. This is transaction number 8. Okay, so all the transactions you have to write when the question is about models of circular flow of income with financial market. जब financial market यहाँ साथ में होता है then you have to consider all the 8 transactions. Okay, let's see the topic once again. The topic is very simple. Okay, let's focus on this thing and we will see 2 new words also here afterwards. After finishing the topic here we will see that words. Okay, now let's start with the first. Okay, सबसे पहले हाउसहोल्ड से क्या मूव होता है प्रोड्यूसर के पास? फैक्टर सर्विसेज. कौन से फैक्टर सर्विसेज? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. ये मूव होता है से हाउसहोल्ड के पास से प्रोड्यूसर के पास. अब मैं अगर प्रोड्यूसर हूं, मैंने हाउसहोल्ड से सब सर्विसेज ली हैं, तो दैट सर्विसेज आई कैन नॉट हैव फ्री. आई हैव टू पे देम फॉर द सर्विसेज दैट दे आर रेंडरिंग टू मी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू पे देम, दैट इज इन ट्रांजैक्शन नंबर 2 here, and that is factor payments. Okay, and I am going to give them factor payment. The factor payment in the form of what? Rent, wages, interest and profit. So from my side, me as a producer, I will give them factor payments. Now payment उनको दे दिया है मैंने. Now the third and fourth transaction here. Now from my side what will flow? The flow of goods and services will be there. Okay, from the producer side to the consumer side, the flow of goods and services is there. Okay, so मैंने उनको गुड्स एंड सर्विसेज दिए, फ्लो हुआ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर.
हाउस होल्ड, अब वहां से क्या मुझे मिलेगा, मनी, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर फॉर देम, ओके, सो दैट इज ट्रांजेक्शन नंबर 4। उनकी तरफ से क्या आएगा मेरे पास, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। इतना हमें कब लिखना है, व्हेन द क्वेश्चन इज मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ सिंपल इकोनॉमी। अगर सिंपल इकोनॉमी में ये पूछा जाता है तो आपको इतना लिखना है, ओके। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल विथ फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट में आपको और भी 4 ट्रांजैक्शन लिखने हैं। सी, ये पॉसिबल नहीं है कि सेविंग ना हो, बोरोइंग ना हो। मॉडर्न इकोनॉमी में ये सेविंग्स एंड बोरोइंग्स तो होता ही है, ओके। सो फाइनेंशियल मार्केट जब आता है तो और 4 ट्रांजैक्शन आ जाते हैं, ओके। 2 ट्रांजैक्शन फ्रॉम द हाउस होल्ड साइड एंड 2 ट्रांजैक्शन फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड। वो दोनों ट्रांजैक्शन है क्या, दोनों सेव करते हैं तो पैसा कहाँ रखते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में, एंड दोनों को अगर पैसों की जरूरत है तो वो पैसा बोरो कहाँ से करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में से। द ट्रांजैक्शंस आर अबाउट सेविंग्स एंड बोरोइंग्स ओनली। सी ट्रांजैक्शन 5, हाउस होल्ड को अगर पैसों की, if they have extra money, they deposit the money in the financial market, that is savings, okay, and if they are in need of money, they borrow the money from the financial market, that is transaction number 6, okay. So 5 and 6 are about savings and borrowings. Number 7, okay, again it is about savings. How producer के पास अगर ज्यादा है, then they will save the money in the financial market, and when they are in need of money, they will put the money, they will borrow the money from the financial market, okay. The whole topic, this one is over, okay. Now थोड़ा समझ लेते हैं सिंपल इकोनॉमी जो फाइनेंशियल मार्केट दोनों है उसके बारे में, ओके। कुछ चीजें यहाँ सेम रहती हैं, ओके। व्हाट आर द थिंग्स दैट रिमेन सेम, ओके। सी, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो यहाँ एक होता है। रियल फ्लो मतलब क्या, गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो हुआ, यहाँ मनी फ्लो होता है, तो ये दोनों सेम है। सो इन दिस टॉपिक यू कैन कम टू, वी विल कम टू फ्यू पॉइंट्स हियर कंक्लूजन में, दैट यहाँ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो एक ही होता है, ओके। जितना एक्सपेंडिचर होता है उतनी ही इनकम होती है। जैसे कि जितना एक्सपेंडिचर फैक्टर पेमेंट्स पे मैंने किया है उतनी ही इनकम किसकी हो रही है, से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, ओके। अगेन जितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उनका होता है उतना ही मेरी ही इनकम होती है, okay. So these all things remain same, so you need to understand these all aspects, okay. Now the topic is over, okay. Now let's talk about next topic. This was topic number 2.3, okay. That topic we have done. Now let's move to the next topic. The next topic is about leakages and injections, okay. Let's see that topic. I hope ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ये टॉपिक आपको आगे भी जो नेक्स्ट चैप्टर है उसमें भी इससे रिलेटेड थोड़े बहुत टॉपिक आएंगे, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स एंड ऑल दैट, वो सब आएगा, ओके। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 2.4, द टॉपिक इज अबाउट लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, इन दोनों के बारे में देखते हैं, ओके। नाउ जब हमने ये सेशन स्टार्ट किया, ओके, उससे पहले रिवाइज किए थे जो टॉपिक हमने इन आवर लास्ट सेशन दैट वी हैव सीन। अब ये टॉपिक हमने देखा था, फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हमने 3 फेसेस के बारे में देखा था, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सो लीकेजेस एंड इंजेक्शंस टॉपिक में ये रिलेटेड है, इसीलिए आई हैव रिटन दिस, ओके। अब इन दिस ये सर्कुलर फ्लो में मूव होते हैं, ओके। नाउ जितना प्रोडक्शन होता है उतनी ही इनकम होती है एंड उतना ही एक्सपेंडिचर होता है, एंड दिस 3 थिंग्स मूव इन सर्कल ओनली, ओके। लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लो प्रोडक्शन है वो 12,000 हो रहा है, इनकम 12,000 हो रही है एंड एक्सपेंडिचर भी 12,000 हो रहा है, ओके। दे आर मूविंग इन सर्कल ओनली। नाउ व्हाट हैपेंस, सी, मान लो सम और द अदर रीजन की वजह से, कोई भी रीजन है जिसकी वजह से ना प्रोडक्शन बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ गई या जो भी, ओके, देन व्हाट विल हैपन, द इनकम विल आल्सो इंक्रीज एंड द एक्सपेंडिचर विल आल्सो इंक्रीज। ये बढ़ जाएगा, देखो तीनों चीज एक साथ बढ़ती है, ओके। अगर प्रोडक्शन बढ़ता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर तीनों बढ़ गया है, देन दिस इज नोन एज व्हाट, इंजेक्शंस इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में इंजेक्शंस हुए हैं,
ओके, प्रोडक्शन बढ़ा है, इनकम बढ़ी है, एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो दिस इज व्हाट नोन एज एक्सपेंशन ऑफ सर्कुलर फ्लो. जब एक्सपेंशन होता है दिस विल बी टर्म्ड एज इंजेक्शंस. ओके, अब इसका ऑपोजिट अगर हम देखें तो ओके ओके ऑपोजिट मतलब अगर इसमें डिक्रीज हुआ है तीनों में, ओके नाउ क्या हुआ, ये कॉन्ट्रैक्शन हुआ है जिसको हम कहते हैं लीकेजेस. ओके, इकोनॉमी में अगर एक्सपेंशन होता है तो उसको हम कहते हैं इंजेक्शंस, एंड इकोनॉमी में अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसको हम कहते हैं लीकेजेस. एंड ये तीनों चीजें जो है वो सर्कुलर फेस में ही मूव होती है एंड दे आर इक्वल ओनली. ओके, सो दिस वाज अबाउट इंजेक्शंस एंड लीकेजेस. ओके, नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन इंजेक्शंस एंड लीकेजेस सो दैट ये टॉपिक है वो पूरा आपको समझ में आ जाए. ओके, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस का डिफरेंस अभी हम यहां देख लेते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट एवरीवन, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस में. ओके, पहले लीकेजेस में, दिस फ्लो वेरिएबल हैव ए नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ओके, द फर्स्ट पॉइंट हियर इज, इसका जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट आता है ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस. क्योंकि लीकेजेस मतलब हमने एग्जांपल में अभी देखा था 12,000 से 10,000 हो गया, तो वो नेगेटिव इंपैक्ट हुआ प्रोडक्शन पे. एंड इंजेक्शंस में हमने एग्जांपल लिया था 12,000 से 20,000 हो जाता है, तो ये इंपैक्ट जो है ये इसे कहेंगे हम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन प्रोडक्शन प्रोसेस. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. एक नेगेटिव इंपैक्ट है, दूसरा पॉजिटिव इंपैक्ट है. ओके, एंड दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है इसे हम कहेंगे विड्रॉवल्स फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो. सर्कुलर फ्लो में से क्या होता है, विड्रॉवल्स होते हैं. एंड यहाँ सर्कुलर फ्लो में से क्या होती हैं, सर्कुलर फ्लो में क्या होते हैं, एडिशंस होते हैं. सर्कुलर फ्लो यहाँ बढ़ता है एंड द लीकेजेस में क्या होता है, सर्कुलर फ्लो है वो कम होता है. ओके, नाउ इफेक्ट ऑन इकोनॉमी क्या आती है, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस की वजह से इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होती है. ओके, सो दैट इज द थर्ड पॉइंट, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी. ओके, इफेक्ट ऑन इकोनॉमी, सी एवरीथिंग गोज डाउन, प्रोडक्शन हो, ओके, इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो. ओके, व्हाट हैपेंस, एवरीथिंग गोज डाउन. एंड यहाँ पे इकोनॉमी में क्या इफेक्ट आएगी, एवरीथिंग गोज हाई, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सब चीजें बढ़ जाती है. ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज अबाउट द एग्जांपल. यहाँ सेविंग्स, टैक्सेशन, इंपोर्ट्स लिख सकते हो, वहां इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर लिख सकते हो. जितना एक्सपेंडिचर बढ़ेगा ना उतना इंजेक्शंस में ज्यादा होता रहता है. ओके, नाउ this is the difference between leakages and injections. So topic 2.4, okay, leakages and injections के बारे में. इकोनॉमी में अगर प्रोडक्शन, इनकम ये सब बढ़ता है तो दैट इज इंजेक्शंस, एंड यही चीज अगर कम होती है तो दैट इज टर्म्ड एज लीकेजेस. ये सब चीजें कम होती है. ओके, वन मोर टॉपिक टू बी डन एंड वी विल एंड our second chapter from macroeconomics. Okay, now the next topic is about stock and flow. ये स्टॉक एंड फ्लो के बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं. ओके, सो द टॉपिक इज अबाउट स्टॉक एंड फ्लो एवरीवन. ओके, 2.5, द टॉपिक इज अबाउट स्टॉक एंड फ्लो. लेट्स सी दिस टॉपिक एंड वी विल सी द डिफरेंस ऑफ दिस टॉपिक. ओके, नाउ जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक मतलब क्या, इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. If I say right now, अभी वेयर हाउस में कितनी क्वांटिटी ऑफ बॉक्सेस पड़े हैं, so that is at a particular point of time. In that case, I am talking about stock. So stock में at a particular point of time आता है. When I talk about stock, I talk about a particular point of time. And when I talk about flow, I am talking about over a period of time. ओके, सो यहाँ टाइम ड्यूरेशन होता है, यहाँ टाइम डायमेंशन होता है, यहाँ कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है. सो दैट इज व्हाई स्टॉक मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. अभी इस समय एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज द सिचुएशन, इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट स्टॉक. लेकिन अगर कोई टाइम डायमेंशन है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, 1 वीक, 1 डे, से 1 मंथ,
okay, a week, fortnight, ऐसा कुछ है, then that will be termed as flow concept. Okay, stock concept and flow concept. Okay, now let's see the difference also between this. ये first point यहाँ पे ही हो गया. Okay, one, it is measured at a particular point of time, and the second, it is measured over a period of time. अब जब time dimension की बात होती है, then here in the second point, there is no time dimension here. Okay, and here when we talk about the flow concept, there is time dimension. 1 week, 1 day, ऐसा कुछ time dimension होता है. Okay, now point number 3 about the concept. Okay, this one is static concept. इसमें कोई change नहीं होता है इसीलिए, and here it is the dynamic concept. Okay, so this was the topic about stock and flow, and one more small topic we need to finish here. Relation between stock and flow. Stock and flow का relation, so actually both the things depend on each other. Stock and flow concept depend on each other. Let's understand that thing, how the stock and flow concept जो दोनों हैं, they are dependent on each other. Let's see that thing. Okay, with the help of example we will understand stock and flow दोनों है वो एक दूसरे के ऊपर depend कैसे हैं. Okay, now see, I'm writing an example here. Increase in bank deposits. See, increase in bank deposit. ये जो हो गया, ये हो गया stock concept, because at a particular point of time ही deposit आप करते हो. Okay, so increase in bank deposit. Bank deposit पहले जो आपका था उसमें से आपने थोड़ा ज्यादा कर दिया. Okay, अब जिसकी वजह से क्या होगा, इंटरेस्ट आपको मिलना बढ़ जाएगा. इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट की वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट विल इंक्रीज. अब इंटरेस्ट तो इंक्रीज हुआ ना, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, बिकॉज इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है ना वो पर डे के हिसाब से होता है. ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट इंक्रीज इन बैंक डिपॉजिट, तो वो हो गया स्टॉक कॉन्सेप्ट, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंटरेस्ट भी मिलना बढ़ गया मुझे, दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट. ओके, सो स्टॉक में चेंज हुआ, स्टॉक में चेंज हुआ तो फ्लो में चेंज आया. Okay, this is the example for that. Now let's see the things in another way. Okay, in the same way, flow variable also influence stock. Now let's see another example. My salary increase, for example, increase in the salary. Increase in salary. That is what flow concept is. Okay, because salary है वो the number of days I go to the school, okay, on that basis I will get the salary. So if my salary increases, okay, so what will happen, my savings will increase. ये salary increase का जो है वो flow concept हुआ. Okay, मेरी salary increase हो जाती है तो मेरी saving बढ़ जाती है, and अगर मेरी saving बढ़ जाती है तो what will happen, increase in bank deposit. मेरी deposits बैंक में है वो बढ़ जाएंगी. That is what slow stock concept is. तो यहाँ पे हमने देखा स्टॉक कॉन्सेप्ट से फ्लो कॉन्सेप्ट पे अफेक्ट होता है, एंड फ्लो कॉन्सेप्ट से स्टॉक कॉन्सेप्ट पे अफेक्ट होता है. सो वी कैन से दैट स्टॉक कॉन्सेप्ट एंड फ्लो कॉन्सेप्ट, बोथ द कॉन्सेप्ट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. ओके, सो this much is there in this chapter. Okay, now the topic that we have done today, once again, number 1, just 2.3 topic आज हमने स्टार्ट किया था, that is say models or forms of circular flow of income. Okay, wherein we have seen कि सिंपल इकोनॉमी है तो क्या लिखना है, 4 ट्रांजैक्शन सिर्फ लिखना है. लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद फाइनेंशियल सिस्टम अगर है, okay, then you have to write all the 8 ट्रांजैक्शन. See, एक तरह से देखने जाओ तो सिंपल इकोनॉमी की जब बात आती है ना, then we are talking about say 2 सेक्टर ओनली. सिंपल इकोनॉमी मतलब 2 सेक्टर ओनली. ओके, लेकिन अगर मेंशन किया हुआ है कि फाइनेंशियल मार्केट के साथ लिखना है तो आपको फाइनेंशियल मार्केट पूरा लिखना है. ओके, नाउ the next thing here that we discussed here was about leakages and injections. Okay, इसमें हमने बात की थी तो 3 phases हैं वो. Okay, 3 phases circular flow के जो हैं वो थे phase of production, income and expenditure. अगर इन तीनों में increase होता है तो that will be termed as injections. अगर तीनों में decrease होता है that will be termed as leakages. Okay, इम्पैक्ट भी हमने देखा था कि इंजेक्शंस का है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है एंड लीकेजेस का नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. द लास्ट टॉपिक दैट वी हैव सीन राइट नाउ वाज अबाउट द स्टॉक एंड फ्लो. जब स्टॉक की बात होती है देन वी टॉक अबाउट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, सॉरी स्टॉक की बात होती है देन वी टॉक अबाउट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फ्लो की बात होती है तो हमने देखा था इट इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है. फ्लो में है वो टाइम डायमेंशन है एंड वो डायनामिक कॉन्सेप्ट है. देन वी हैव लास्टली वी हैव सीन
the relation between stock and flow. Okay, stock and flow के बीच में क्या relation है. Okay, so this is the second chapter that we have in. Chapter 1 and 2 macroeconomics में जो हमने deal किए हैं, they are very small chapters. Okay, इनमें से थियरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. नाउ नेक्स्ट सेशन में से हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे. ओके, वी आर एक्चुअली डीलिंग विथ मैक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट यूनिट, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट है जिसमें 4 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स. एंड वो जो 4 चैप्टर्स है एग्जाम के व्यू पॉइंट से देखो तो वो 10 मार्क्स के हैं. एंड जिसमें से नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, एंड दैट फॉर 6 मार्क्स. ओके, सो न्यूमेरिकल के व्यू पॉइंट से द चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ फ्रॉम चैप्टर 3 we are going to understand the concepts, the terms which we will be using in the numericals. अगर आपको जो terms हैं, concepts हैं वो clear हैं, तो numericals will be very easy for you. Okay, that's it for today. Now in our next session we are going to start with chapter 3. Okay, till then, thank you and have a nice day.